Assalamu alaikum everyone, this is Alamdar and welcome to Shosha. And definitely, as you know, we always have some very important and very, prestigious guests from all across the globe. And there's a reason behind it because our objective basically aap logon tak very inspirational stories batana hai. But this special guest with me right now is all the way from LA to Pakistan, and I think she's contributed a lot in the world of consciousness, yoga, meditation and whatnot. So we have with us Saliha Bhatti. Oh, thank you so much, Alamdar, for having me here. Pleasure, and thank you for being a part of the show. So, Saliha, my first question always is whenever the audience is here, या जो भी कोई नया मेरा गेस्ट आता है तो मैं उनसे बड़ा रिस्पेक्टफुली सबसे पूछता हूँ कि यार आप ऑडियंस को ये बताएं कि आखिर सालिहा है कौन? ये तो पूरी जिंदगी लग गई है, अभी पूरी जिंदगी लगेगी to discover who I am. I think life is a journey to really find out who we are. Right. Instead of defining who I am and creating an ego around my persona, I like to be one with all life. Right. Because I'm always evolving, but I understand your question. Saliha is someone who loves love, and I want to share love and light and help people really raise the level of their consciousness and feel happy and joyful and abundant in their lives. Okay. So in whichever way that I can serve humanity to raise our consciousness, that's what I love to do. Okay, I think very intense conversation होने लगी है because she basically is obviously she practices yoga. She's been doing it for a long time. तो थोड़ा सा अपनी journey in terms of being in the yoga side of the world, trying to still look forward to discover yourself. उसमें आपने कितना time हो गया है आपको, and what sort of certifications do you have? Because I just want, because I met you किस्मत से, I met to one of her sessions. Obviously it wasn't for me, but anyways मैं इनसे फिर भी इनसे मेरी मुलाकात हो गई थी. तो but थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी ये जर्नी क्या है, what exactly do you do? आप थोड़ा सा ऑडियंसेस को क्लैरिटी देंगी in terms of chakras and everything, ताकि जो आवाम सुन रही है उनको भी पता चलेगी आखिर जर्नी है क्या. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी असल में जर्नी तकरीबन 12-13 साल शुरू हुई. ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, काफ़ी मैं इमोशनली ज़हनी बहुत अपसेट थी. उस वक्त मैंने मेडिटेशन को डिस्कवर किया एंड देन आई ट्रैवल टू श्रीलंका एंड जापान. मैंने दूसरी फ़िलासफ़ीज़ लर्न करनी शुरू की, बुद्धिज़्म को और टाओइज़्म को लर्न करना शुरू किया. आई sat in temples and meditated and sat in waterfalls and really allowed the water to activate and release the emotion from my body. और वो naturally, intuitively सब कुछ हो रहा था. बिल्कुल ठीक. तो I didn't really walk this path knowing कि मैं कहाँ पे पहुँचूंगी. Right. I basically listened to an intuition that said that there is a better way of life. ठीक है. मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, रिश्तेदारों में देखा है कि people kind of just try to cope with things. With life basically. Yeah. लेकिन मुझे बताया कि आजकल But I didn't want that. I wanted something different. So I leaned into really learning who I am and asking the unknown. Right. जिसको हम नहीं जानते. I just ठीक है. kept asking the source, Allah, whoever the creator Absolutely. is. I kept asking, give me the answers, show me why I'm here. And that led me to doing meditation trainings. I have been meditating since then. That's nice. I have my sadhana, which is a morning practice that I do where I meditate, I chant, I do breath work, and then my yoga and Pilates. And that's really helped me a lot become who I am. But आपने certifications का भी पूछा, आपने बहुत सवाल पूछे एक ही साथ. मैं आहिस्ता सवाल पूछना चाहूँगा, बट आजकल के let's talk about the current scenario of हमारी ज़िंदगी और लाइफ कि टेंशन हमारी ख़त्म नहीं होती. ये जो है ना, because every time you'd have, आप सोने लगते हैं तो आपका जहन में ना हर चीज़ें घूम रही होती हैं. तो a lot of people have that issue, जो बेचारे सो भी नहीं पाते हैं. But I think a lot of I've been through the journey इस किस्म की self discovery वाली, and I'm still doing it. और योगा मेडिटेशन obviously आपको centered करता है. तो आप मुझे बताएं कि आजकल के दौर में ये किस को ज़रूरत है? Because I think 99.9% आवाम जो फ़ोन पे बैठी है उनको ज़रूरत है. हर किसी को ज़रूरत है. सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम अपने दिमाग को जो है ना ड्राइविंग सीट पे ला के रख देते हैं. Our mind is driving our life.
which is not the mind's job. इसीलिए हम हर वक्त जब सो रहे होते हैं तो आपने जैसे कहा कि जहन बंद नहीं होता, नींद सही नहीं आती, हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक स्ट्रेस के स्टेट में रहता है. बिल्कुल ऐसे ही. तो अगर उसको हमने रिलैक्स करना है तो वी हैव टू टेक द सीट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस. हमारे जो सोल है उसको हमें ड्राइवर सीट पे लाना होगा. हम दिमाग इज़ जस्ट, आवर माइंड इज़ जस्ट लाइक अ टूल दैट वी यूज़. हमारा दिमाग तो एक औजार है ना जो हम इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सही बात. हर चीज़ का जवाब दिमाग के पास नहीं है. दिमाग ऑल्सो इज़ वेरी वेरी लिमिटेड. हमारा दिमाग इतना इवॉल्व नहीं हुआ जितना अब टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट इवॉल्व हो रही है, राइट? और माइंड स्टिल इज़ very much in the stone age, so we're slowly evolving, but for that consciousness to raise our mind's ability to understand life and to perceive life, हमें अपनी consciousness को, अपने soul को उसको फ्रंट पे रखना चाहिए. और यही चीज़ मैं लोगों को सिखाती हूँ क्योंकि लोग काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं. वो कहते हैं नहीं हम हर चीज़ जहन से कर रहे हैं. हर चीज़ ही हम जहन से कर रहे हैं क्योंकि हम लॉजिक पर ज़्यादा बिलीव करते हैं ना. हाँ. तो हम अपने दिल की कम सुनते हैं क्योंकि दिल की जब सुनते हैं तो डज पड़ जाती है. ये तो ये भी है. ये तो है. So whenever we try to consciously listen to our heart, it's a tough journey. लेकिन आप दिल की नहीं, आप अपनी इंट्यूशन का सुनो. और दिल की बात हम ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि दिल एक तो डिज़ायर और वो होता है कि इम्पल्सिव डिज़ायर होता है, एक होता है ट्रू डिज़ायर जो आपकी इंट्यूशन, जो मतलब खुदा के साथ कनेक्शन से आपको एक इंट्यूशन आ रही है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैट. आपको ढस तभी लगती है जब आप जो है ना हेस्टफुली कुछ ऐसा करते हो कि वो या तो आपकी ईगो ने उस चीज़ को चाहा होता है या आपको ऐसी कोई कहानी बताई जाती है कि आप समझते हो कि oh yeah everybody else wants it and everybody else is happy with it so then I want it too. But अगर आप अपनी इंट्यूशन में, अपनी सोल में टैप इन करो, अल्लाह के साथ कनेक्शन आप क्लियर और डायरेक्ट करो, then the guidance is always different than what your mind could think of, than what your ego could think of, and that's what's really important for all of us. Social media की बात करूँगा. The impact of social media, because I think it has created a lot of fake bubble thought process for a lot of people out there, जिसकी वजह से आई थिंक वो आपकी वाली बात है, वो एक फेकनेस को परसू करने के लिए ज़्यादा चले आते हैं. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब वो परसू नहीं कर पाते हैं तो वो मेंटल हेल्थ की डायरेक्शन में चले आते हैं. तो हाउ मच डज योगा एंड मेडिटेशन हेल्प वन फाइंडिंग नॉट ओनली द सेंटर्डनेस बट ऑब्वियसली गेटिंग थ्रू विद दीज मेंटल इश्यूज जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी यंगर जनरेशन में स्पेसिफिकली बहुत हो रहे हैं? योगा एक साइंस है. वो आपको सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि अपनी जो आपकी सेल्फ है उसकी मास्टरी सिखाता है. राइट. मेडिटेशन आपको ये सिखाती है कि आपका जो सोच है, जो आपके ख्यालात हैं वो 100% ट्रू नहीं है. देर ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन द सीजन्स ऑफ लाइफ, बेस्ड ऑन आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही, कहाँ नहीं जा रही, एंड यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स. बिल्कुल ठीक. आपने जो सवाल किया कि सोशल मीडिया और जो रियलिटी में जो हो रहा है उसके साथ बंदा ज़्यादा इन टच कैसे रह सके, बिल्कुल. वो आप अपने आप को रेगुलेट करके रह सकते हो. यू हैव टू लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस, यू हैव टू लर्न टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम. लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं कब ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ, मुझे कब नर्वसनेस फील हो रही है, मुझे कब ऐसा फील हो रहा है कि मैं दूसरों से ओपिनियन ज़्यादा ले रहा हूँ या मैं दूसरे लोग क्या कहेंगे उसको ज़्यादा वेट दे रहा हूँ. आप जब नोटिस करना शुरू करोगे ना अपने आप को, अपने बिहेवियर को, तो बेशक वो सोशल मीडिया हो या रिलेशनशिप्स हो या वर्क एंड मनी सिचुएशन हो, आप हमेशा अपने आप को संभाल सकोगे. बट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग योर बिहेवियर देन यू आर काइंड ऑफ ब्लाइंड कि आप कहाँ जा रहे हैं. If you're always on your phone and always on social media, your dopamine receptors get completely wasted. मतलब वो इतनी ज़्यादा dopamine release हो रही है वो उस टाइम पे वक्ती तौर पे टेम्पररी खुशी मिल रही है बेसिकली. हाँ. लेकिन टेम्पररी खुशी के साथ गम भी मिल रहे होते हैं ना. दैट्स द थिंग. बिकॉज गम लोगों को इस किस्म के मिलते हैं. सो what happens is, so what I personally felt
सोशल मीडिया इम्पैक्ट की बात करूंगा कि यूजुअली जब आप देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ जिंदगी में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं लोग है। कर रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है। आई थिंक दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से हो सकता है कि ये मसला हो। एज इन यू नीड टू सेंटर योरसेल्फ, राइट? हाँ बिल्कुल, अगर लोग कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको फील करा रहा है कि मुझे भी ये करना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लो। और अगर आप किसी को देख रहे हो और उससे जेलसी फील हो रही है, एनवी फील हो रही है, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यार जो इस बंदे के पास है वो मैं भी चाहता हूँ। Then instead of watching that person, you can do it yourself. But ये कोई आपको आके उठाएगा नहीं। I like to say that nobody is coming to save you. You've got to save yourself. So saving yourself से ज़्यादा है कि आप बताएं, आप इस्लामाबाद में ही हैं तो आप लोग के भी current, because I've met her through because she's teaching that as well, तो people who would want to reach out to you or probably would want to take a session or something, क्योंकि आप group classes भी ले रही हैं, तो आपके भी currently in the coming few weeks हैं, because I think you're here till the 6th. By the way, happy birthday to her, इनकी आज birthday भी, by the way. Thank you. Happy birthday. तो Triple Aquarius. हाँ, तो आप you can tell the audience, you can tell the viewers कि how can they get in touch or find कि आपके current जो events हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, if they want to join your meditation and your yoga, तो Thank you so much. I'm doing womb healing and sacred feminine activation sessions at Soul Sanctuary. I'm open for one-on-one or a group session. Maybe I will do another one next week, but I have one tomorrow in Islamabad. Well, thank you very much for that. Any last messages to all the viewers out there besides going and doing it? And obviously we will be sharing, आपके Facebook page का and Instagram page का, we'll share that. Oh yeah, follow me on Saliha111 and my healing company's name is Behen Chara. बहन चारा, थोड़ा सा बहन चारा के बारे में बताती चलें और उसके बाद फिर हम यार मैंने हमेशा ये देखा कि औरतों को एक दूसरे के साथ लड़ाया जाता है और औरतों को एक दूसरे के साथ बहुत सेपरेशन फील करवाई जाती है। एंड जितना मैं एलिमेंट्स के करीब गई हूँ, मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी है और अपने आप के ऊपर काम किया है, मैं काफ़ी क्लियर इस चीज़ पे हूँ कि फॉर अस टू रियली राइज ऑन अर्थ टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, औरतों को एक साथ होना, एक यूनियन में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने बहन चारा बनाया। एंड ऑल ऑफ माई वर्क इज़ फॉर वुमेन एंड आई स्टार्ट विद loving rituals that activate the divine love between sisters and really create that womb network around the earth, because hamara womb is really, really powerful and it's intelligent beyond time and space because it receives life beyond time and space. So it is intelligent that way. Absolutely. And so connecting each of the wombs is the mission of Behen Chara, and that's what I do. Awesome. Well, thank you very much for taking out time on your birthday, because she already has to go for dinner. But anyways, nonetheless, I'm so happy to be here. This was such a great coincidence. Yeah, see, this is what happened. I'm really grateful. Thank you. Awesome. Anyways, guys, thank you very much. You guys can surely leave your comments and the feedback with us. And if you want to reach out to her, we will surely be giving you the page and everything in the description down below. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.